guys, and welcome back to a brand new episode of your favorite show, Planet Bollywood. My name is Manish, and I'm here with all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. I'm going to kickstart the show, but before that, let me remind you guys to check out our Zoom Facebook page where you can get minute-by-minute updates about your favorite celebrities. And on that note, here are our top stories. Malaika Arhora's dazzling diamond ring sparks engagement rumors with Arjun Kapoor. Parveen Babi may have suffered due to a lack of support and awareness, says her former partner Kabir Bedi. SRK's Pathaan, Salman's Tiger 3 and Prabhas's Adi Purush shoot halted due to lockdown in Maharashtra. Sushant Singh Rajput fans get furious after watching Nyai's promo. Nick Jonas calls his wife Priyanka Chopra the inspiration behind his songs. अभी शादी होगी भी तो कैसे होगी अगर करनी भी होगी not planned and not thought about it, but like I always say, I will not hide it. क्या मलाइका अरोरा ने कर दिया है शादी के लिए हाँ? मलाइका अरोरा की उंगली पर चमक रही हीरे की अंगूठी क्या अर्जुन कपूर और उनकी एंगेजमेंट का डेक्लेरेशन है? Somehow when you love somebody, to say that one particular thing you like, because that the whole point is when you love somebody, you love the entirety of the personality that person has. मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर पिछले कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। The two confirmed their relationship in 2019 जब उन्होंने अपना एक रोमांटिक फोटो अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। Though there were eyebrows raised about the fact that there was an age difference and also that Malaika has a teenage son, Malaika और अर्जुन की rock solid love story ने यही प्रूव कर दिया है that in love there are no rules or boundaries. Take a look. मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर अक्सर एक साथ डिनर्स और लंचेस करते हुए दिखाई देते हैं एंड द टू ऑल्सो फ्रीक्वेंटली टेक हॉलिडेज एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर। उनके फैंस ने भी उनकी इस स्वीट सी लव स्टोरी को खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया है और अक्सर दोनों से ये पूछा जाता है कि वो शादी कब करेंगे। I feel she really gets me and she's very patient with me. I'm not the easiest and the simplest person to be with. I am a certain way, and I think her patience with me really matters. And she has that maturity that sometimes I need. She is older than me, and that accounts for being able to have a sense of calm and maturity that you need when you're around somebody like me who can tend to be a little impatient or a little emotional from time. मलाइका अरोरा ने जब अपने सोशल मीडिया पेज पे एक खूबसूरत एंगेजमेंट रिंग के साथ अपनी 2 फोटोज शेयर की तो उनके फॉलोअर्स ये सोच के काफी एक्साइटेड हो गए कि मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर की एंगेजमेंट हो चुकी है। But for me I think he is super funny and entertaining all the time. फोटोज में मलाइका अरोरा एक दुल्हन की तरह शर्मा रही हैं and she looks stunning in a chic pastel colored Indian outfit. मिनिमल मेकअप और बाल खुले रख के मलाइका अरोरा ने अपने इस पॉसिबली वुड बी ब्राइड के लुक को कंप्लीट किया। मलाइका अरोरा की पहनी हुई रिंग भी बहुत खूबसूरत है। कुशन कट में बनाई गई ये नायाब डायमंड रिंग कई छोटे और बड़े हीरों से जड़ी हुई है और इसे पहन के मलाइका अरोरा अर्जुन कपूर के दिल की मलिका लग रही हैं। लेकिन फोटो के कैप्शन से हमें पता चला कि मलाइका अरोरा इन तस्वीरों में अपनी एंगेजमेंट नहीं अनाउंस कर रही थीं, बल्कि एक ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट कर रही थीं। Malaika Arora wrote in her caption, "How dreamy is this ring? Love, love, love it. Happiness starts here." And added details related to the brand she is endorsing. Well, Malaika, आपके हाथ पे ये हीरे की अंगूठी खूब जच रही है। Arjun Kapoor should maybe take inspiration and pop the question soon with a beautiful diamond ring especially made for you. प्रियंका चोपड़ा जोनस है अपने पति निक जोनस की इंस्पिरेशन। निक, जो खुद एक कामयाब सिंगर है, gave an interview to a magazine जहां उन्होंने बताया कि प्रियंका का साथ उन्हें क्रिएटिवली इंस्पायर्ड रखता है और अपनी वाइफ का सपोर्ट पाके वो एक बेहतर आर्टिस्ट बन रहे हैं।
प्रियंका एंड निक या फिर निकियांका as their fans call them, बॉलीवुड और हॉलीवुड में एक बहुत ही पॉपुलर जोड़ी है। ये पावर कपल पिछले साल से एलए और लंदन के बीच अपने काम की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अपने इंडिविजुअल करियर्स में बिजी होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए वक्त जरूर निकालते हैं एंड दे आल्सो मेक इट अ पॉइंट टू प्रमोट एंड सेलिब्रेट ईच अदर्स अचीवमेंट्स। टेक अ लुक। प्रियंका ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो निक से मिली, शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय जस्ट हाउ सेल्फ अश्योर्ड एंड सेंसिबल ही वॉज। उन्हें ये जानकर भी खुशी हुई कि निक प्रियंका के अचीवमेंट्स और सपनों को लेके कितने सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग थे। शायद निक के इस मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग नेचर पे ही प्रियंका का दिल आ गया, लेकिन इट लुक्स लाइक निक भी अपनी पत्नी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। एक रीसेंट इंटरव्यू में द सिंगर सेड कि प्रियंका ही उनकी प्रेरणा है और अक्सर उनके लिखे हुए गीत प्रियंका से इंस्पायर्ड होते हैं। निक शेड, I feel really fortunate to have that muse and that support propels me to continue to write. It's omnipresent for me. We're together as much as we can be to bank as much time for those moments that we know that we inevitably will be apart. पिछले साल पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान प्रियंका और निक कई महीनों तक लॉस एंजलिस में थे, जहां प्रियंका ने अपना मेमोयर अनफिनिश्ड को कंप्लीट किया। पीसी पिछले कई महीनों से लंदन में है, जहां वो बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स के लिए शूट कर रही हैं। She completed filming for a movie Text for You and is currently shooting for the new series Citadel. प्रियंका ने इसी बीच अपनी फिल्म The White Tiger को प्रमोट किया, अपना हेयर केयर ब्रांड लॉन्च किया and also opened a restaurant in New York in partnership with her husband Nick. प्रियंका और निक रिसेंटली एक अवार्ड शो के रेड कार्पेट पे एक साथ नजर आए, जहां प्रियंका प्रेजेंटेड एन अवार्ड एंड निक अटेंडेड विथ हर टू ऑफर सपोर्ट। वाकई दिस इज अ कपल विद अ ट्रूली इक्वल एंड स्पेशल रिलेशनशिप। Remember when my parents were and my sister were, they were in Mumbai, they were visiting me, they were packing their bags and ready to leave, and I was sitting on the bed and I was curled up, and my mother said to me, she said, "Are you okay?" And I said, "Yeah, I'm fine." She said, "Is it work?" So I said, "No, I'm fine." And she said, is something bothering you?" I said, "No." She asked me 2 or 3 times, and I could feel myself choking, and I broke down. If it wasn't for you, I wouldn't be here. So thank you for helping me through this. I have experienced issues in my own personal life. We all go through ups and downs. It's important. The ups are important. The downs are important because we evolve through both of them. And when you go through a down, then you have to. The most important thing is clarity of thought. To have your thoughts clear. Sometimes your brain takes over, and it kind of feeds you with unwanted thoughts. Feeds you with thoughts which are not aligned with what you want to do in your life, and that's the time when you need an objective point of view. You need a third person, a second person to look at you and say that this is what is happening to you, because you lose awareness at that time. I'm depressed, and I have been for more than 4 years now. I've been to a doctor. I'm clinically depressed. But I'm doing much better now. परवीन बाबी, दीपिका पादुकोण और ईरा खान, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जो मेंटल इलनेस से जूझ चुके हैं या जूझ रहे हैं। परवीन बाबी के मेंटल इश्यूज ने उनके करियर और रिलेशनशिप्स को लगातार अफेक्ट किया एंड अल्टीमेटली लेड टू हर आइसोलेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री।
लकीली आज ज्यादा अवेयरनेस होने की वजह से दीपिका और ईरा जैसे पब्लिक फिगर्स ब्रेवली और खुल के अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे हैं और लोगों को भी अपनी मानसिक तकलीफों के लिए इलाज लेने की सलाह दे रहे हैं। Though most of us go to a doctor if we get hurt or develop a fever, mental health issues के लिए मदद लेना या मांगना आज भी टैबू माना जाता है। There is a lot of shame and stigma associated with taking counseling or treatment for issues like anxiety, depression, or even more serious conditions like schizophrenia, which Parveen Babi allegedly battled for years. Hopefully, with more celebrities speaking up about their mental health concerns, this stigma will slowly diminish और लोग जिस तरह अपने फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं एडवाइस के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। Here's the story. पिछले साल टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सडन डिमाइस ने लोगों को शॉक कर दिया था। While the case surrounding his demise is still being investigated by the CBI, शुरुआती छानबीन से ये बात सामने आई कि शायद सुशांत कई सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे, जिनसे हारकर उन्होंने ये दुखद कदम उठाया। शायद स्टार होने की वजह से वो अपनी तकलीफों के बारे में पब्लिकली बात नहीं कर पाए। कई साल पहले इसी वजह से परवीन बाबी ने भी अपने करियर और पर्सनल लाइफ में बहुत सेटबैक्स फेस किए। Though she was stunningly beautiful and a talented actor, Parveen Ji's battles with her mental health and the insensitive manner in which people spoke about it back then due to a lack of awareness only worsened her condition. कबीर बेदी, जो परवीन जी के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में थे, has opened up about her difficulties in his new book, जहां वो कहते हैं कि उन्होंने परवीन जी को बहुत मदद करने की कोशिश की। In an interview, he said, "The love that I felt for her was extraordinary and intense." लेकिन उन्हें अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से सफर करते हुए देखना उनके लिए इमोशनली एग्जॉस्टिंग था। While there still remains a huge stigma attached to speaking about mental health issues, आज ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो खुल के इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। Deepika Padukone opened up about her battling anxiety and depression in a TV interview. Deepika ने एक NGO भी शुरू किया जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों की मदद करता है। She has been actively advocating कि लोगों को शर्म की जंजीरों को तोड़कर मदद मांगनी चाहिए। आमिर खान की बेटी ईरा भी एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं, जिन्होंने कुछ ही महीनों पहले अपने सोशल मीडिया पेज पे ये शेयर किया था that she is undergoing treatment for clinical depression. ईरा ने बहुत ही सीधे और सफल लफ्जों में अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बातें की and very recently she shared a video update about how her therapy and treatment is progressing. Ira captioned her post, "There are lots of paths to me. This is a conflict between two of them that very seriously affect my attempts at healing from my overall depression. The plan is to reduce the frequency and intensity of my burnouts. I don't need to change my entire being and functioning. That's what I need to find, that balance." One can only hope कि increased awareness और empathy से ज्यादा लोग अपने mental health issues को लेके खुल के बात करेंगे और इससे जुड़े टैबूज को मिटा देंगे। पठान, टाइगर और आदि पुरुष के सेट्स पे छाया सन्नाटा। नहीं गूंजेंगी लाइट्स, कैमरा, एक्शन की आवाज। बॉलीवुड को फिर लगा एक बड़ा धक्का। पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सारे फिल्म और टेलीविजन शोज के शूट को बैन कर देने का ऑर्डर दिया है। मूवी थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस भी 1 मई तक बंद रहेंगे, delaying the release of films like Suryavanshi and Thalaivi. Well guys, it's unfortunate to see the entertainment business go back to where we were just a year ago. कुछ ही महीनों पहले लंबे इंतजार के बाद फिल्म्स और टेलीविजन शोज के शूट्स रिज्यूम हुए थे और थिएटर्स फाइनली रीओपन हो गए थे। बट सैडली आज लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रख के सरकार को सारी रिस्ट्रिक्शंस दोबारा इन्फोर्स करने पड़ रहे हैं। टेक अ लुक।
फिल्म शूट्स रुकने के साथ साथ कई बड़ी फिल्मों के रिलीजेस भी डिले होने वाली हैं। पठान, टाइगर 3 और आदि पुरुष जैसे बिग बजट ब्लॉकबस्टर्स के शूट्स आज से रोक दिए जाएंगे, जिसकी वजह से इन फिल्म्स के रिलीज डेट्स भी डिले हो सकती हैं। इस बीच पठान के सेट पे क्रू मेंबर्स के पॉजिटिव टेस्ट होने की वजह से शूट रोकने के रूमर्स को गलत बताते हुए एक सोर्स ने बताया, a scheduled break was anyway slated for April 13th and 14th. However, abiding by the new rules, the shoot of the Siddharth Anand directed vehicle is on hold for the next fortnight starting Thursday. कटरीना के पॉजिटिव टेस्ट होने के बावजूद भी टाइगर 3 की शूट चल रही थी, विद डायरेक्टर मनीष शर्मा स्केड्यूलिंग पोर्शंस विद सलमान खान अलोन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इस बिग बजट मूवी के कास्ट और क्रू भी कम से कम 2 हफ्ते तक शूट नहीं कर पाएंगे। फिल्म्स के अलावा टेलीविजन शोज और एड फिल्म्स की शूट्स को भी रोक दिए गए हैं। कई टीवी शोज के सेट्स पे मल्टीपल एक्टर्स पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं एंड दिस वाज ऑलरेडी कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द टीम्स। ऑलमोस्ट 100 शोज की शूट रुक जाने की वजह से टीवी इंडस्ट्री को भी काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। While the TV industry representatives are likely to write to Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray for all television shows to resume shoot post-May, पैंडेमिक की वजह से बढ़ते केसेस को देखकर उनकी ये अपील स्वीकार होगी या नहीं, ये तो बस वक्त ही बताएगा। Well, दोस्तों अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. सुशांत सिंह राजपूत की दुखद कहानी पर बेस्ड एक फिल्म न्याय द जस्टिस इस साल जून में रिलीज होने वाली है। फिल्म का टीजर और पोस्टर हाल ही में रिलीज हुआ है। टीजर से साफ पता चलता है that the film is based around the actor's shocking demise and the investigation that followed. सुशांत के अचानक गुजर जाने के बाद बॉलीवुड में तूफान सा आ गया था। Many of his fans and other members in the industry felt कि उन्हें एक non-star kid and outsider होने की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो टूट गए थे। The investigation into his demise is yet to be closed and perhaps a film so obviously made on this tragedy has angered people. Here's the story. सुशांत सिंह राजपूत एक यंग टैलेंटेड एक्टर थे जो सिर्फ 34 इयर्स की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। While people are still coming to terms with his loss, न्याय द जस्टिस के ट्रेलर ने सुशांत के फैंस के जख्मों को फिर हरा कर दिया है। इस फिल्म में सुशांत का नाम यूज नहीं हुआ है, but the visuals and events portrayed make it quite clear कि ये फिल्म पिछले साल हुए हादसे पे आधारित है। अपने डिमाइस से पहले सुशांत रिपोर्टेडली एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जहां वो अपने करियर और पर्सनल लाइफ में कई सेटबैक से जूझ रहे थे। माना जा रहा है कि इनकी मानसिक तकलीफों की वजह से उन्होंने एक दुखद कदम उठाया and caused his own demise. As it happened in the months following Sushant's passing, फिल्म के ट्रेलर में भी एक इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है, जहां सुशांत से इंस्पायर्ड कैरेक्टर की भूमिका जुबेर के खान निभाएंगे, while श्रेया शुक्ला will be playing Riya's character. The movie is supposed to release on the 11th of June as a tribute to Sushant before the first anniversary of his demise. लेकिन फिल्म के टीजर ने नेटिजन्स और सुशांत के फैंस को काफी अपसेट कर दिया है। सोशल मीडिया पे इस ट्रेलर के खिलाफ कई स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रहे हैं एंड पीपल फील दैट रिलीजिंग दिस फिल्म बिफोर द इन्वेस्टिगेशन इनटू सुशांत्स डिमाइस इज कंप्लीट सीम्स इनसेंसिटिव। वैसे बॉलीवुड में एक्टर्स और फिल्म मेकर्स पे कई फिल्म्स बन चुकी हैं, लेकिन शायद फिल्म के इतने डायरेक्ट पोर्ट्रेयल और ग्राफिक विजुअल्स की वजह से लोग अपसेट हैं।
Maybe the best tribute to Sushant will be to create a more transparent work environment in Bollywood and encourage people with mental health issues to speak up. टीवी स्टार्स एंड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज किसी न किसी रीजन से सुर्खियों में हमेशा रहते हैं. फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस एंड वेडिंग्स. Fans love to hear all the latest updates from the lives of their favorite small screen celebrities. So let's check out today's small screen खबरों का roundup. Take a look. रुबीना दिलाइक अपने शो शक्ति पे लौट आई हैं और वहाँ उन्हें मिला एक खास वेलकम. रुबीना दिलाइक जो शो में एक किन्नर का रोल प्ले कर रही हैं, was welcomed by members of the LGBTQ community, जिन्होंने केक के साथ रुबीना दिलाइक का शो के सेट पर स्वागत किया. रुबीना दिलाइक ने अपने सोशल मीडिया पेज पे फोटो शेयर करते हुए लिखा, And that's how I was welcomed back on my show Shakti by the #LGBTQ community. #humbled. ए डॉगी तू जा मास्क पहन के आ. नहीं ए डॉगी वो देखो मास्क नहीं पहना इसने. हाँ तो चला उन्हें मास्क लेने गया. So मैं भी बहुत टेंशन में हूँ और स्ट्रेस रहता है. हम लोग का बिग बॉस से बाहर आए और इतने पाइपलाइन में इतने सारे काम है, लेकिन अभी लॉकडाउन है. लॉकडाउन के बाद ही सब लोग काम करेंगे. चलो बाय, सी यू एवरीवन. राखी सावंत को पापराजी ने उनकी डांस क्लास के बाहर स्पॉट किया. राखी सावंत सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के बाद काफी पॉपुलर हुई हैं और प्रेस वाले अक्सर उन्हें रोक के उनसे बातें करते हैं. राखी सावंत ने सभी प्रेस फोटोग्राफर्स को दी गुड़ी पड़वा और रमादान की मुबारकबाद और ये भी कहा कि वो पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से जुड़े सारे नए रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस को एक अच्छे नागरिक की तरह फॉलो करेंगी. माधुरी दीक्षित जो जल्द ही अपना OTT डेब्यू करने जा रही हैं, उन्होंने शेयर करे हैं कुछ मेस्मराइजिंग पिक्चर्स जिन्हें देखकर सब उनके दीवाने हो जाएंगे. इन पिक्चर्स में माधुरी दीक्षित ने काफी एक्सपेंसिव लहंगा पहना है जिसे डिजाइन किया है डिजाइनर अमित अग्रवाल ने. शहनाज गिल ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक नया वीडियो क्लिप शेयर किया है जहां वो एक कैची ट्यून पर डांस कर रही हैं और अपना नया लुक भी फ्लॉन्ट कर रही हैं. इट लुक्स लाइक शहनाज गिल ने अपना हेयर स्टाइल बदल दिया है एंड शी इज नाउ स्पॉटिंग बैंग्स. द एक्टर एंड रियलिटी शो स्टार twirls in her new video to the music she is playing and looks pretty in a casual t-shirt and skirt. आपके लिए रुके थे मैम, फटाफट. अरे बाप रे. हिना खान को पापराजी ने एक पार्किंग लॉट में घेर लिया, फ्राइटनिंग द एक्टर क्वाइट अ बिट. शायद पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से वो फोटोग्राफर्स की भीड़ को देखकर काफी डर गईं और अपनी कार की तरफ भागने लगी. अनफॉर्चुनेटली फोटोग्राफर्स भी उनके पीछे उनकी कार तक पहुंचे, जहां अंदर बैठने के बाद उन्होंने प्रेस को थैंक किया और उन्हें गुड बाय कहते हुए वहां से निकल गईं. नेहा कक्कड़ ने बैसाखी, गुड़ी पड़वा और रमादान तीनों साथ में विश करते हुए इस शुभ दिन पर वीडियो शेयर किया एक रोमांटिक गाने पर लिप सिंक करते हुए और उनके कैप्शन से मालूम चलता है कि वो ये सॉन्ग डेडिकेट कर रही हैं उनके हबी रोहनप्रीत सिंह को. एजाज खान और पवित्र पुनिया को फोटोग्राफर्स ने एक साथ स्पॉट किया एंड द कपल ग्रेशियसली अग्रीड टू पोज फॉर पिक्चर्स. एजाज खान और पवित्र पुनिया सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो में कंटेस्टेंट्स थे और दोनों के बीच वहीं नजदीकियां बढ़ी. The two are an official couple now and their fans love to see them together. निया शर्मा को डांस करने का बहुत शौक है and the actor has shared a brand new video on her social media page जहां वो अपने डांस क्रू के साथ मुंबई की सड़कों पर नाच रही हैं. निया शर्मा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए अपने कैप्शन में लिखा, Go Shorty at Akshay Jain Official. Thank you for entertaining my demands. Been fun. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन. रमजान का चांद मुबारक, रमजान मुबारक आप सबको. सना खान जो कि अपने हस्बैंड अनस सैयद के साथ अपना पहला रमादान सेलिब्रेट कर रही हैं, वहीं सना खान ने अपने फैंस को रमादान की मुबारकबाद देते हुए और रमादान का इम्पोर्टेंस बताते हुए एक वीडियो मैसेज शेयर किया. इस वीडियो को कैप्शन देते हुए सना खान ने लिखा, रमादान मुबारक. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all sound minds, unshakable faith and good health in this blessed month of Ramadan and forever till he wishes. आमना शरीफ जो हाल ही में नजर आई थी जानवी कपूर हॉरर कॉमेडी फिल्म रूही जल्द ही डेब्यू करने जा रही हैं ऑन OTT विद डैमेज्ड 3. ऑन द ओकेजन ऑफ रमादान आमना शरीफ ने एक सुपर हिट सॉन्ग गलत फहमी पर अपना वीडियो शेयर करते हुए अपने सभी फैंस को दिए विशेस.
Well, guys, with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood. We will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, you guys stay home, stay safe, and stay tuned to our Zoom Facebook page where you can get all the updates that you want on the go about your favorite celebrities. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.